Namaskar everyone. How are you all? I hope you guys are fit and fine. See, in previous video we have solved our textbook exercise 1 and 2. So today we are going to solve our exercise 3. Answer the following questions. As you can see, there is no space for answers here, है ना? There are only questions. So all these questions and answer we have to write down in our fair notebook. Okay. So there are hard words and then question and answer. Write down with your pencil. Okay. So our firstly what you have to write, you have to write down your chapter's name, chapter 2, keeping safe. Okay, then you have to write exercise 3, answer the following questions, and then question number 1 जैसे हम लिखते हैं. Okay, so here is question 1. How can we avoid injuries? What is the question? How can we avoid injuries? यानी हम जो injuries है उसे कैसे avoid कर सकते हैं? तो answer is we should follow some simple safety rules to avoid injuries. यानी हमें कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स है जिसको फॉलो करना चाहिए जिससे हम इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज वी शुड फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड इंजरीज. ओके, सो राइट डाउन विथ मी. जैसे मैं बोलती जा रही हूँ यू हैव टू राइट डाउन एंड हैंड राइटिंग शुड बी very neat and clean. Okay. Second question is write any 3 rules to stay safe at home. What is our question? Write any 3 rules to stay safe at home. अगर हमें घर पे safe रहना है तो we have to follow some safety rules at home. So which are these rules? You have to write down any 3 rules here. Answer is first one है do not leave your toy bags and books lying on the floor. आपको फ्लोर पे ऐसे अपने जो बैग है, टॉयज़ है या बुक्स है वो नहीं रखने हैं. सेकेंड जो रूल है that is be careful while walking on wet bathroom floors. You must have to careful while walking on the wet bathroom floors. Not even bathroom floors, आप कहीं भी फ्लोर वेट देखे so you must have to careful while walking. Okay. Third rule is never touch electric stuff with wet hands. Never touch electric stuff like wires, plugs, है ना, switches. Never touch electric stuff with wet hands. गीले हाथों से छूना नहीं चाहिए. So these are the 3 rules to stay safe at home. First rule is do not leave your toys, bags and books lying on the floor. Second rule is be careful while walking on the wet bathroom floors. Third rule is never touch electric stuff with wet hands. See, after every sentence we must have to put full stop. So don't forget. And see the question number 3. Write any 3 rules to stay safe at school. अगर हमें स्कूल में सेफ रहना है तो कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं. ओके, सो हियर आर these rules. तो आंसर इज फर्स्ट रूल इज नेवर रन अराउंड बेंचेस इन द क्लासरूम. क्लासरूम में बेंचेस के अराउंड घूमना नहीं चाहिए. नेवर.
Second rule is do not run while climbing up or climbing down the stairs. Whenever you climbing up or climbing down the stairs, you do not run. ओके आपको रन करके वो क्लाइंब और ऑफ नहीं करना है. ओके. थर्ड रूल इज डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस. आप कभी भी मूविंग बस से चढ़ेंगे नहीं और उतरेंगे भी नहीं. ओके. सो all these rules you must have to follow whenever you are at school. So first rule is never run around benches in the classroom. Second rule, do not run while climbing up or coming down the stairs. Third rule, do not get into or get off a moving bus. Next question. Question number 4. What should we use to cross the road safely? If we we have to cross road safely. So what we have to use? हमें क्या use करना चाहिए? So answer is we should use zebra crossing or a subway to cross the road safely. हमें क्या use करना चाहिए? We should use zebra crossing or a subway to cross the road safely. अगर road safely cross करना है so we must have to use zebra crossing and subway. Okay. Next question. Question number 5. What is first aid? Answer is the immediate help given to an injured person is called first aid. What is the question? Question is what is first aid? यानी first aid क्या है, यानी प्राथमिक उपचार क्या है. तो क्या है? आंसर इज द इमीडिएट हेल्प. मतलब जैसे उसे लगी तुरंत ही हम उनकी हेल्प करेंगे. द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड. उसे हम फर्स्ट एड बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ would you help a person with cuts and wounds? अगर किसी इंसान को cuts and wounds आ गए तो आप कैसे हेल्प करोगे? तो सी आंसर इज फॉर स्मॉल cuts and wounds we should wash the area with water. अगर स्मॉल कट है तो हम क्या करेंगे? हम जो जहाँ पे लगी है उस एरिया को पानी से साफ़ करेंगे. वाइप इट जेंटली. प्यार से उसे वाइप करेंगे. एंड पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम. और एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे. ये हुआ स्मॉल कट के लिए. और अगर वो कट आपको लग रहा है कि आप खेलने जाओगे तो उसमें धूल मिट्टी लगेगी तो यू कैन देन टाई अ बैंडेज और अ क्लीन हैंकरचीफ अराउंड द वुंड. अगर घाव थोड़ा मतलब ऐसा है कि आप अगर खेलने जा रहे हो या बाहर जा रहे हो धूल मिट्टी लगने वाली है सो हम क्या करेंगे? उससे बैंडेज या फिर क्लीन हैंकरचीफ को उससे लपेट लेंगे वुंड को. सो दिस इज़ फर्स्ट एड फॉर स्मॉल कट्स एंड वुंड्स. इफ़ द वुंड इज़ डीप, अगर घाव बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है, सो गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली. आपको इमीडिएटली यानी तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है. ओके. सो आपको ये आंसर लिखते टाइम देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ पे कॉमा किया है ना, कहाँ पे फुल स्टॉप है. यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट. आफ्टर एवरी आंसर एंड आफ्टर एवरी सेंटेंस यू मस्ट हैव टू पुट फुल स्टॉप. ओके. सो फिर से हम ये क्वेश्चन समझ लेते हैं. हाउ वुड यू हेल्प अ पर्सन विथ कट्स एंड वुंड्स? आपको अगर कोई आपके पास आया कोई और उसे बहुत कट और वुंड है तो आप उसे उसकी कैसे हेल्प करोगे? तो सी फॉर स्मॉल कट्स एंड वुंड्स वी शुड
wash the area with water, wipe it gently, and put an antiseptic cream. Then tie a bandage or a clean handkerchief around the wound. And if the wound is deep, go to a doctor immediately. So these are the questions which you have to write down in your fair notebook. Okay, make sure कि आपके hard words सारे complete हो जाए. We have 23 hard words in chapter 2 and then new page से आप ये question answer start करेंगे. Okay, so we'll repeat our question answer. Read with me. Exercise 3. Answer the following questions. Question number 1. How can we avoid injuries? Answer is, we should follow some simple safety rules to avoid injuries. Second question is, write any 3 rules to stay safe at home. Answer is, first rule is, do not leave your toys, bags and books lying on the floor. Second rule is, be careful while walking on wet bathroom floors. Third one is, never touch electric stuff with wet hands. Question number 3. Write any 3 rules to stay safe at school. Answer is, first rule is, never run around benches in the classroom. Second rule, do not run while climbing up or coming down the stairs. Third rule, do not get into or get off a moving bus. Next question, question number 4. What should we use to cross the road safely? Answer is, we should use zebra crossing or a subway to cross the road safely. Question number 5. What is first aid? Answer is, the immediate help given to an injured person is called first aid. Next question. How would you help a person with cuts and wounds? Answer is, for small cuts and wounds, we should wash the area with water, wipe it gently, and put an antiseptic cream. Then tie a bandage or a clean handkerchief around the wound. If the wound is deep, go to a doctor immediately. So this is our question answer. Now see the page number 28. Let's recall. See, recall and complete the concept map given below. यहाँ पे आपको एक मैप दिया है, वो कंसेप्ट क्या है वो देखना है. कंसेप्ट मैप है और आपको ये फिलअप करना है. सेफ्टी रूल शुड बी फॉलोड एवरीवेयर. ये ना, ये हमने सीखा दैट सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलो एवरीवेयर. कहीं भी हम इसे फॉलो कर सकते हैं. एट होम, एट स्कूल एंड ऑन द रोड इवन. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रूल है जो आपको दिया हुआ है, आपको बाकी के 3 रूल्स यहाँ पे लिखने हैं. तो ये बहुत ही इजी है. चलो, टेक योर पेंसिल एंड राइट डाउन विथ मी. बट हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. जैसे मैंने करे हैं आपको बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे लिखना है विथ योर पेंसिल. सो फर्स्ट रूल यहाँ पे है, डू नॉट लीव योर टॉयज, bags and books lying on the floor. Second rule we have to write down, be careful while walking on wet bathroom floors. Third rule we have to write, never touch electric stuff with wet hands. And fourth rule is, do not try to light firecrackers by yourself. So these are the rules which you have to write down in at home part. Okay, ये part में ये rules लिखने हैं. Now see, at school. So which safety rules we should follow at school? So here it is. First rule हमें दिया हुआ है,
never run around benches in the classroom. Second rule is do not run while climbing up or climbing down the stairs. Third rule is do not get into or get off a moving bus. Fourth rule is never push your friends while playing. So these are the rules which we have to follow at school. See, ये हमने बहुत बार रिवाइज करा है. सो ये अब हम इंग्लिश में ही समझेंगे कि ये रूल क्या है. ओके, अब इसका ट्रांसलेट हम नहीं करेंगे. सो थर्ड पार्ट इज ऑन द रोड. सेफ्टी रूल्स विच वी हैव टू फॉलो ऑन द रोड. फर्स्ट रूल हमें दिया हुआ है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड. Second rule is do not stick your face or any part of your body out of a moving bus. Third rule is always walk on the footpath. And fourth rule is use a zebra crossing or a subway to cross the road. So these rules you have to write down in this concept map, okay, with your pencil and very neat and clean handwriting. Now turn the page number 29. Let's observe. यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है. क्या ऑब्जर्व करना है? See, it is in your homework, exercise 1 and 2 both. See, look at the picture carefully. Label the item present in the first aid box. सी, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दी गई है, उन्हें आपको लेबल करना है. ओके, बहुत ही ईजी है. जैसे इसे हम क्या बोलेंगे? बैंडेड, है ना. इसे सिरिंजेस, इसे कॉटन, या फिर ये सब आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो दिया हुआ है. यू हैव टू राइट डाउन. नाउ सी द सेकेंड वन. It is also in your homework. Label the two places that can help you go to the other side of the road safely. यहाँ पे आपको क्या करना है? लेबल करना है ऐसे दो प्लेसेस को जो आपकी हेल्प कर सकते हैं टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रोड. आपको अगर एक साइड से दूसरी साइड तक जाना है तो कौन हेल्प करेगा वो आपको यहाँ पे लेबल करना है. तो इट इज़ सबवे और इट इज़ ज़िब्रा क्रॉसिंग दैट यू हैव टू लेबल. इट इज़ इन योर होमवर्क. नाउ सी, लेट्स कनेक्ट. वी शुड नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स, है ना. ये आपको एक लाइन दी हुई है. सी, इसके साथ हमें क्या करना है? हियर अप एंड डाउन आर ऑपोजिट वर्ड्स. यहाँ पे आपको अप एंड डाउन जो दिए हुए हैं वो ऑपोजिट वर्ड्स हैं. राइट ऑपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स. यहाँ पे आपको ऐसे, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है वैसे 5 और सेंटेंस दिए हुए हैं और उसमें कोई एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन की गई है. तो उस अंडरलाइन का जो ऑपोजिट वर्ड है वो हमें यहाँ पे लिखना है. So first sentence is do not go near a gas stove. तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है near. तो near का opposite क्या होगा? far. So we have to write down far here. FAR. Second one is do not get on a moving bus. यानी यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड है वो है on. तो ऑन का ऑपोजिट क्या होगा? ऑफ. सो राइट डाउन OFF, ऑफ. ओके, इजी है ना? यस. नाउ सी द थर्ड वन. नेवर पुश योर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग. इन दिस सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज पुश. सो पुश का ऑपोजिट क्या होता है? पुल. PULL, pull. Now see the fourth one. You might trip over your toys and fall. So here is underlined word is over. So
ओवर का ऑपोजिट क्या होगा? बिलो, BELOW. राइट डाउन बिलो हियर. नेक्स्ट वन, डू नॉट स्टिक योर फेस आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. आउट इज अंडरलाइन वर्ड और उसका ऑपोजिट है इन. सो दिस इज our exercise. Let's connect. Now see the page number 30. Let's apply. See what you have to apply, that Yash and his friends were late and had to run to catch the bus. Do you think it was a safe thing to do so? आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है तो उसका आपको आंसर देना है. आप यहाँ पे यस और नो लिख सकते हो. और आपको यहाँ पे हिंट क्या दी गई है? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सेफ ऑन द रोड. अगर यहाँ पे देखो यस और उसका फ्रेंड है वो लेट हो गए हैं और उनको बस को कैच करना है, बस पकड़नी है. तो इज़ इट ओके उनको दौड़ना चाहिए उसके पीछे? नो, है ना. तो इट इज़ नॉट सेफ. So this is you have to apply on you. Second one is, why should we insist on keeping a first aid box at home. हमें घर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स क्यों रखना चाहिए, क्यों हम इंसिस्ट करते हैं? वाई? बिकॉज अगर हमें घर पे कहीं भी लग गया, हम जल गए, तो अगर फर्स्ट एड बॉक्स होगा तो जल्दी से हमें राहत मिल पाएगी. सीधा हम डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते हैं ना, छोटे छोटे कट के लिए तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. सो वी शुड कैरी अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम. हिंट, थिंक अबाउट द यूज़ ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स. जैसे अभी मैंने आपको बोला कि फ़र्स्ट एड बॉक्स क्यों ज़रूरी है, वो आपको सोचना है. और घर पे, सबके घर पे फ़र्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए. लेट्स डू इट. आप एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाओ. आपके घर में एंटीसेप्टिक क्रीम जो भी है, लोशन है, डेटॉल है, वो उसमें डालो और उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड करो. ओके, मैं अपने स्टेटस में रखूँगी. नाउ लेट्स एनालिसिस एंड इवेल्यूएट. सो हियर इज़ अ क्वेश्चन विच यू हैव टू गिव. ओके, आपको ही देने हैं, आपको यहाँ पर लिखना है. मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी कि क्या करना है. सो निखिल इज़ कटिंग एन एप्पल with a knife. What can happen to him if he is not careful? यहाँ पे एक निखिल करके एक लड़का है, वो एप्पल कट कर रहा है. वो अगर केयरफुल नहीं रहा तो क्या होगा, वो यहाँ पे आपको लिखना है. If he is not careful, he might cut his hand. है ना, ऐसा आंसर हो सकता है. So you have to write down with your own. Second question is, what should he have done instead? अगर ये खुद से ना करे तो instead of cutting apple by his own, उसके अलावा वो क्या कर सकता है? तो आप क्या करोगे? आप अगर एप्पल कट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे कट लग जाएगा, तो instead of cutting your apple by your own, what you will do? हम क्या करेंगे? हम मम्मा के पास जाएंगे या किसी बड़े को कहेंगे. तो वैसे ही निखिल भी क्या कर सकता है? ही कैन गो विथ योर मदर एंड ही कैन से दैट कि मम्मा एप्पल कट कर दो, है ना. सो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं. नाउ सी, लेट्स क्रिएट. ये आपके सैटरडे संडे के होमवर्क के लिए है. ये आप संडे में फ्री होते हो, है ना, आपके पास कुछ काम नहीं होता, तो हम कुछ क्रिएट करते हैं. चलो, तो मेक अ मॉडल ऑफ ट्रैफिक लाइट्स यूजिंग ओल्ड कार्डबोर्ड शीट, कवर ऑफ ओल्ड नोटबुक्स. ओके, आपको क्या करना है? ट्रैफिक लाइट सिग्नल बनाना है. किससे बनाओगे आप? आपकी जो कार्डबोर्ड शीट पड़ी होती है घर पे, जैसे कोई बॉक्स है, शूज़ बॉक्स है, या फिर हम कहीं कुछ चीज़ लाए उसका बॉक्स है, उससे आप बना सकते हो. उसकी जो शीट है वो आप कट करके, या फिर आपकी ओल्ड नोटबुक्स पड़ी है तो उसका जो आपका पेज है, फ्रंट पेज जो एकदम
ठीक होता है, उससे आप ये बना सकते हो. Use colored sheet to make traffic signals and use those signals for a drill on safe roads with your teacher. अभी आपको क्या करना है, ये बना के मुझे सेंड करना है मंडे तक. कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से ये करो, आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा कि रेड लाइट क्या बोलती है, व्हाट इज़ ग्रीन लाइट सेज, व्हाट इज़ येलो लाइट सेज. ओके, तो दिस इज़ फॉर यू टू क्रिएट. और आपको फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है. मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स यूजिंग एन ओल्ड शूज़ बॉक्स एंड देन in groups of 5 show how you would use it to help the person for small cuts and wounds. आपको अगर आप स्कूल में होते ना तो हम 5 का ग्रुप बनाते और ये एक्टिविटी करते, पर अगर आप अभी घर पे हो तो आपको खुद से अपना जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो बनाना है. इसके लिए आपको कोई मार्केट से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है. आपके घर में एंटीसेप्टिक क्रीम होती ही है, डेटोल होता है, कॉटन होता है, ये आप सब एक बॉक्स में इकट्ठा कर सकते हो. ऊपर अगर इसमें लिखा ही है, आप शूज़ बॉक्स को यूज़ कर सकते हो. ऊपर आप रेड क्रॉस बना सकते हो, लिख सकते हो फर्स्ट एड बॉक्स. ओके, और पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड करना है. तो ये आपको 2 क्रिएशन करने हैं. कौन कौन से? मॉडल ऑफ ट्रैफिक लाइट्स एंड फर्स्ट एड बॉक्स. ओके, be safe and be healthy.